Birbal ki Kahaniyan are a collection of witty and insightful stories centered around the legendary figure Birbal, who was one of the most prominent ministers in the court of the Mughal Emperor Akbar. Birbal was known for his sharp intellect, quick wit, and deep wisdom, and his tales often showcase his clever solutions to problems, as well as his ability to outsmart others. Here are a couple of popular Birbal ki Kahaniyan. 1. The Wise Man's Answer. Once, Emperor Akbar asked his courtiers, "Who is the most important person in this world?" All the courtiers gave their answers, each one saying something different. Some said the king, some said the army, and some even said money. Birbal then answered, "The most important person is the one who is present in front of you when you need them, and that's your servant, your companion, or even your friend." Akbar appreciated Birbal's wisdom and realized that he had a unique ability to speak the truth in simple terms. 2. The Pot of Wisdom. One day, Akbar had a dispute with a neighboring king and wanted to solve it diplomatically. He asked Birbal for advice. Birbal thought for a while and said, "Your Majesty, wise king must look into all possible solutions before making decision. I will bring you a pot filled with the most precious thing." He left and returned with a pot filled with water. Akbar was confused. Birbal then said, "Water is the most precious thing because it is essential for life. In times of conflict, always think of the most basic and important things that matter, and you will find peace." The emperor was amazed by Birbal's simple yet profound wisdom. 3. The Donkey Test. One day, Emperor Akbar was having discussion with his courtiers. He asked them, "Who is the most foolish person in my kingdom?" The courtiers were quiet, and Akbar's question remained unanswered. Birbal, ever ready, smiled and said, "Your Majesty, the most foolish person in the kingdom is someone who believes they are wise when they are not." The emperor smiled in appreciation of Birbal's quick thinking. 4. The Three Questions. Emperor Akbar once asked Birbal to answer three difficult questions. 1. What is the most important thing in the world? 2. What is the most valuable thing? 3. What is the most difficult thing to find? Birbal replied, "The most important thing is time, for it waits for no one. The most valuable thing is good health, for without it, everything else is meaningless. And the most difficult thing to find is true friendship, for it is rare and precious." Akbar was impressed by Birbal's answers and praised his wisdom. These stories are often told to illustrate important lessons such as wisdom, humility, and the value of friendship and honesty. Birbal's cleverness and resourcefulness made him a beloved figure in Indian folklore. बीरबल की कहानी, गधे की परीक्षा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, "मेरे राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है?" सभी दरबारी चुप थे और किसी को भी उत्तर नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल हंसते हुए बोले, "महाराज, सबसे मूर्ख व्यक्ति वह है जो यह सोचता है कि वह बुद्धिमान है, जबकि वह मूर्ख होता है।" अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और पूछा, "लेकिन बीरबल, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बुद्धिमान समझता हो और मूर्ख होता हो?" बीरबल मुस्कुराए और बोले, "महाराज, एक बार एक गधा किसी जगह पर जा रहा था। उस गधे को लगा कि वह किसी शेर के समान शक्तिशाली और सम्मानित है। वह जोर जोर से रेंगता और अपने पैरों से धरती को ठोकता रहा। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह गधा था जो शेर नहीं बन सकता था। यह गधा मूर्ख था क्योंकि उसे अपनी वास्तविकता का एहसास नहीं था।" अकबर समझ गए और मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी को यह शिक्षा दी कि हमेशा अपनी वास्तविकता को समझना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से बीरबल ने अकबर को और दरबारियों को एक बड़ी सीख दी। कहानी का संदेश था, अधिकतर लोग अपने बारे में अधिक घमंड करते हैं, लेकिन सच यही है कि किसी को अपनी असलियत को पहचानना चाहिए। बीरबल की कहानी, ज्ञान का मटका। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक ऐसा दिन आया जब अकबर को अपने राज्य के सभी मामलों को लेकर कुछ उलझने महसूस हो रही थी। वह अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन वह किसी समाधान पर नहीं पहुंच पा रहे थे। अकबर का मन भारी था और वह कुछ ऐसा करना चाहते थे
जिससे वह अपने निर्णय लेने में और अधिक कुशल हो सके। तभी उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद मिले? बीरबल अकबर की आंखों में झलकते हुए चिंता को देखकर मुस्कराए और उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है, बीरबल? बीरबल ने अकबर को बताया कि वह एक मटका लेकर आना चाहते हैं जिसमें कुछ विशेष चीजें रखी जाएं। अकबर ने बीरबल के सुझाव पर सहमति जताई और बीरबल को यह कार्य सौंपा। अगले दिन बीरबल एक बड़े मिट्टी के मटके के साथ दरबार में लौटे। मटका पूरी तरह से बंद था और वह उसे ध्यान से अकबर के सामने रखकर बोले, महाराज, इस मटके में वह चीज रखी गई है जो हर राजा को अपने शासन में ध्यान रखना चाहिए। अकबर थोड़े चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुमने इस मटके में क्या रखा है और मुझे क्यों यह चीज चाहिए? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसे खोलने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपको पता है कि जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह सवाल तो बड़ा ही जटिल है, बीरबल। शायद शक्ति, धन या फिर राजसी सम्मान सबसे कीमती है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं महाराज, सबसे कीमती चीज है समय। समय एक ऐसा धन है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही किसी से लिया जा सकता है। अगर हम समय का सही उपयोग करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अकबर ने ध्यान से सुना और बीरबल की बातों को समझने की कोशिश की। अब बीरबल ने मटके को खोल दिया और उसमें से पानी की एक छोटी सी धार बहने लगी। उन्होंने कहा, यह पानी समय की तरह है। यह लगातार बहता जाता है और कभी भी रुकता नहीं। यदि हम समय का सही उपयोग न करें तो यह हमारे हाथों से फिसल जाएगा। समय की कीमत हम केवल तब समझते हैं जब वह हाथ से निकल चुका होता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहरा विचार किया और बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, इस मटके में और क्या है जो मुझे यह समझने में मदद करेगा? बीरबल ने कहा, महाराज, इसके बाद मटका खाली कर दिया जाएगा और इसमें जो बचा रहेगा वह है ज्ञान। यह ज्ञान ही है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। बिना ज्ञान के हम किसी भी निर्णय में सही रास्ता नहीं चुन सकते। इसलिए ज्ञान सबसे मूल्यवान है। जब हम ज्ञान को सही तरीके से ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम सच्चे रूप से सफल होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और समझ गए कि उन्होंने क्या कहा। वे बीरबल से बोले, बीरबल, यह शिक्षा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। समय और ज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। समय की कीमत और ज्ञान का महत्व हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद, बीरबल, तुमने मुझे एक अनमोल शिक्षा दी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। और यही मेरा उद्देश्य है, आपको हर स्थिति में सही मार्ग दिखाना। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि समय और ज्ञान दोनों ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर हम समय का सदुपयोग करें और ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो हम न केवल अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना समय की कीमत समझे और बिना ज्ञान की प्राप्ति किए हम जीवन में सच्चे अर्थ में सफलता नहीं पा सकते। अकबर ने बीरबल के द्वारा दी गई यह अनमोल शिक्षा हमेशा याद रखी और उसी दिन से उन्होंने अपने शासन के हर निर्णय में समय और ज्ञान को प्राथमिकता देना शुरू किया। बीरबल की कहानी, बुद्धिमान का उत्तर। मुगल सम्राट अकबर को अपनी सरकार के कामकाज के लिए हमेशा अपने दरबारियों से सलाह मिलती रहती थी। अकबर बहुत समझदार और न्यायप्रिय सम्राट थे, लेकिन वह अपने राज्य में बेहतर शासन और न्याय के बारे में हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनके दरबार के हर सदस्य उनके विचारों और निर्णयों पर ध्यान से विचार करें और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करें। लेकिन एक दिन अकबर के मन में एक सवाल उठा जो उन्हें लंबे समय तक परेशान करता रहा। अकबर को यह जानने की बहुत इच्छा हुई कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। यह सवाल उन्हें बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। वह जानते थे कि उनके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान मंत्री, दरबारी और सेनापति हैं, लेकिन वे चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तर मिले जो उनके इस प्रश्न का सही समाधान दे सके। एक दिन
अकबर ने अपने दरबार में इस सवाल को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा, मुझे यह बताओ, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? अकबर के इस सवाल ने सबको चौंका दिया। सभी दरबारी सोचने लगे कि वह इस सवाल का उत्तर कैसे देंगे। हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देने की कोशिश कर रहा था। कुछ दरबारी कह रहे थे कि राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि राजा राज्य के सारे फैसले करता है। कुछ लोग कहते थे कि सेना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना ही किसी भी युद्ध में विजय दिला सकती है। फिर कुछ अन्य दरबारी कहते थे कि धन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना धन के कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन अकबर के सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था। अकबर ने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी बातों से ही उलझे हुए थे और कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, उठे और धीरे से अकबर से कहा, महाराज, मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने उन्हें अनुमति दी और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है। मुझे इंतजार रहेगा। बीरबल को यह मौका मिला और वह दरबार से बाहर चले गए। उन्होंने सोचा कि इस सवाल का सही उत्तर खोजने के लिए उन्हें कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा जो अकबर को न केवल संतुष्ट करे, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दे। बीरबल कुछ समय के बाद वापस दरबार में लौटे। उनके हाथ में एक बहुत ही साधारण सा लकड़ी का बर्तन था। अकबर को यह देखकर थोड़ी चौंकते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या लाए हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह बर्तन हमारे सवाल का उत्तर है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे खोल कर दिखाऊं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह क्या है? एक साधारण सा बर्तन क्या हमें इस सवाल का उत्तर देगा? बीरबल ने बर्तन को खोलकर अंदर से एक छोटा सा कागज निकाला और उसे अकबर के सामने रखते हुए बोले, महाराज, इस कागज पर वह उत्तर लिखा है जो इस सवाल का सही जवाब है। अकबर ने चौंकते हुए कागज को खोला और उस पर लिखा हुआ पढ़ा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो आपके पास सबसे जरूरी समय में उपस्थित हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति में महत्व होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो आपको मुश्किल समय में मदद करता है, जो आपके साथ खड़ा होता है जब आप अकेले होते हैं। वह व्यक्ति जो आपकी सबसे कठिन घड़ी में आपकी मदद करता है, वही असल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी यह व्यक्ति आपका मित्र होता है, कभी कभी यह आपका परिवार होता है, और कभी कभी यह आपके पास मौजूद कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। यही असल में उस समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अकबर को बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए। वह सोचने लगे कि यह सही है, क्योंकि राज्य के सारे फैसले और धनी लोग होते हुए भी एक व्यक्ति की अहमियत तब होती है जब वह सच में किसी की मदद करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, बीरबल, तुम सच में अत्यंत बुद्धिमान हो। तुमने मुझे यह महत्वपूर्ण सीख दी कि हर समय हर किसी का महत्व होता है और हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों की कद्र करनी चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की अहमियत समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वे वही होते हैं जो हमें उस समय मदद करते हैं जब हम सबसे ज्यादा जरूरतमंद होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को दिल से समझा और सबको यह शिक्षा दी कि जीवन में दूसरों की मदद करना और उनके महत्व को समझना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा होता है और आपकी मदद करता है। धन, राज्य और शक्ति से भी बढ़कर मनुष्य का असली मूल्य उस समय होता है जब वह किसी दूसरे की मदद करता है। अकबर और बीरबल की इस बातचीत ने सबको यह समझाया कि किसी व्यक्ति के महत्व का मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से दूसरों की अहमियत समझनी चाहिए और उनकी कद्र करनी चाहिए। बीरबल और जादुई हिरण की कहानी। यह कहानी मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल से जुड़ी एक अद्भुत घटना पर आधारित है, जिसमें एक जादुई हिरण और बीरबल की चतुराई की परीक्षा ली गई थी। यह कहानी न केवल बीरबल की बुद्धिमानी को प्रदर्शित करती है,
बल्कि यह भी सिखाती है कि समझदारी और शांति से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे राज्य के कई हिस्सों से अजीब खबरें आ रही हैं। एक अद्भुत हिरण जंगल में घूमता है। कहते हैं कि वह जादुई है और उसकी उपस्थिति से समृद्धि और खुशियां आती हैं। क्या तुम मुझे इस हिरण के बारे में कुछ बता सकते हो? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, महाराज, यह हिरण कोई साधारण जानवर नहीं है। यह वास्तव में एक जादुई हिरण है जिसके बारे में बहुत से किस्से हैं। लोग कहते हैं कि इस हिरण के साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सच्चा और निष्ठावान हो, समृद्धि और सुख प्राप्त कर सकता है। मगर यह हिरण केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो दिल से अच्छे और सच्चे होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और उत्सुकता से पूछा, क्या तुम इसे देखने का कोई तरीका जानते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे यकीन है कि अगर हमें यह हिरण चाहिए तो हमें अपने दिल को शुद्ध रखना होगा। यह हिरण केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो ईमानदार होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास किया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारे साथ इस हिरण को ढूंढने के लिए तैयार हूं। जादुई हिरण की खोज। अकबर और बीरबल ने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में कई गांवों और जंगलों से होते हुए वे उस जगह पहुंचे जहां यह जादुई हिरण दिखाई देने की बात थी। जंगल का दृश्य बहुत ही शांत और रहस्यमय था। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और धुंधली रोशनी में वातावरण कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ समय तक चलने के बाद अकबर और बीरबल एक खुले क्षेत्र में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक अद्भुत हिरण धीरे धीरे सामने आ रहा था। यह हिरण बिल्कुल अलग था। उसका रंग सुनहरा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति से पूरी जगह में एक अजीब सी चमक फैल गई। हिरण ने अकबर और बीरबल को देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अकबर बहुत खुश हुए, लेकिन बीरबल ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, आप ध्यान रखें कि यह हिरण केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो दिल से सच्चे होते हैं। अगर हम इसे पकड़ने का प्रयास करेंगे तो यह भाग जाएगा। हमें इसे बिना नुकसान पहुंचाए इसकी उपस्थिति का आनंद लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर किया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हमें इसका शिकार नहीं करना चाहिए। हिरण की जादुई शक्ति। जब अकबर और बीरबल उस हिरण को देख रहे थे तो अचानक वह हिरण एक चमकती हुई रेखा की तरह गायब हो गया। यह दृश्य देखकर अकबर चौंक गए। वह समझ नहीं पाए कि यह हिरण कैसे गायब हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या हुआ? वह हिरण अचानक गायब हो गया। क्या यह सच में जादुई था? बीरबल ने कहा, महाराज, यह हिरण जादुई है, लेकिन उसका जादू इस तरह से काम करता है। वह सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। जो लोग अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित रखते हैं, वही इसे देख सकते हैं। इस हिरण की जादुई शक्ति यह है कि वह लोगों को यह सिखाता है कि केवल सच और अच्छाई में ही शक्ति होती है। लालच और इच्छाओं के पीछे भागने से जीवन की असली खुशियां नहीं मिलती। अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल का ज्ञान हमेशा उन्हें सच्चाई और समझ की दिशा में मार्गदर्शन करता है। बीरबल का उत्तर। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि यह हिरण किसका प्रतीक है? क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह हिरण एक प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई को अपनाना ही सबसे बड़ा जादू है। हिरण की सुंदरता और चमक असल में अच्छाई की ताकत को दर्शाती है। जैसे वह हिरण हमारे सामने आकर गायब हो गया, वैसे ही हमारी इच्छाएं और लालच हमारे जीवन में भ्रम और दुख पैदा करते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे मन से सुना और महसूस किया कि वास्तव में इस जादुई हिरण की कहानी उन्हें जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा मुझे महत्वपूर्ण बातें सिखाते हो, बीरबल। यह हिरण केवल एक जादुई जीव नहीं था, बल्कि यह हमारी सच्चाई और अच्छाई की प्रतीक था।
अब मुझे समझ में आया कि जीवन में सबसे बड़ा जादू हमारे खुद के दिल और विचारों में है। निष्कर्ष। बीरबल और अकबर की यह यात्रा सिर्फ एक जादुई हिरण की खोज तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन के सच्चे मूल्य को समझने की यात्रा थी। अकबर ने यह सीखा कि किसी भी चमत्कारी चीज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारे अंदर का सत्य और अच्छाई। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि हमें अपनी इच्छाओं और लालच से परे जाकर एक सच्चे और ईमानदार जीवन को अपनाना चाहिए। यह कहानी यह बताती है कि हमारे जीवन की असली शक्ति हमारे खुद के चरित्र और कार्यों में होती है, और हमें हमेशा अपने भीतर अच्छाई और सत्य को बनाए रखना चाहिए। जादुई हिरण की उपस्थिति ने अकबर को यह समझने में मदद की कि जो चीज़ बाहरी रूप से चमत्कारी लगती है, वह असल में एक गहरे संदेश का प्रतीक होती है, जो हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी की अहमियत को समझाता है। व्यवहार किया, यही मेरी मदद का कारण है। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अजय से कहा, अब मैं भी तुम्हारे लिए वही करूंगा जो तुमने मेरे लिए किया। सीख। सच्ची दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। यह बिना किसी उम्मीद के होती है, बस एक दूसरे के लिए खड़ा रहना ही दोस्ती है। 3. सच्ची खुशी। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम रघु था। रघु के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। वह हर रोज मुस्कुराता और अपने कामों में व्यस्त रहता। उसके पास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें उसने फूल और पौधे लगाए थे। गांव के लोग अक्सर उसे ताने मारते थे कि उसके पास पैसा नहीं है और वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन रघु हमेशा कहता, मैं खुश हूं क्योंकि मैं जो हूं वही मुझे अच्छा लगता है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह रघु से मिला और उसे अपने पास काम करने के लिए बुलाया। रघु ने बड़े शांति से उत्तर दिया, धन से अधिक तो खुशियां कीमती हैं। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूं। व्यापारी हैरान होकर चला गया। रघु की सच्ची खुशी ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली सुख तो शांति और संतुष्टि में होता है, न कि दौलत में। सीख। असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और मानसिक शांति से मिलती है। 4. सपनों को हकीकत में बदलना। एक दिन एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिमा था। सिमा का सपना था कि वह बड़ी डॉक्टर बनेगी और गरीबों का इलाज करेगी। उसके पास सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। वह दिन रात पढ़ाई करती और उसकी मदद करने के लिए उसके माता पिता भी उसे प्रेरित करते रहते थे। गांव के लोग उसे कहते थे, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, कैसे डॉक्टर बन पाओगी? लेकिन सिमा ने कभी इन बातों को दिल से नहीं लिया। वह कड़ी मेहनत करती रही और अंत में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। कई सालों की कठिनाई और संघर्ष के बाद वह बड़ी डॉक्टर बनी और गांव के लोगों की सेवा करने लगी। सीख। किसी भी सपना को पूरा करने के लिए केवल मेहनत और निष्ठा चाहिए, और कभी भी हालात के आगे नहीं झुकना चाहिए। 5. ईमानदारी की ताकत। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सोमू था। वह अपनी दुकान में सामान बेचता था और हमेशा अपने ग्राहकों से ईमानदारी से काम करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया और सोमू से कहा, तुम्हारी दुकान में ज्यादा मुनाफा नहीं है। अगर तुम कुछ गलत रास्ता अपनाओ तो तुम्हें अधिक पैसे मिलेंगे। सोमू ने सोचा और फिर कहा, धन कमाने के लिए मैं ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करूंगा। वह व्यापारी हंसते हुए चला गया, लेकिन कुछ सालों बाद सोमू की दुकान बहुत बड़ी हो गई। उसकी ईमानदारी ने उसे लंबी अवधि में सफलता दिलाई, जबकि वह व्यापारी जल्द ही बर्बाद हो गया। सीख। ईमानदारी और सच्चाई की ताकत से सफलता मिलती है, और गलत रास्ते से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चे उद्देश्य, मेहनत, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती से ही सफलता प्राप्त होती है। तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान और चतुर व्यक्ति थे। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और साहसिकता के बारे में कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक है ईमानदारी की ताकत। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और उसने राजा से मुलाकात की। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसे मैं बेचने आया हूं।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे लिए देख लें और मुझे बताएं कि इसका असली मूल्य कितना है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और व्यापारी से रत्न को तेनालीराम के पास लाने को कहा। व्यापारी ने ऐसा ही किया और तेनालीराम ने रत्न को ध्यान से देखा। जब तेनालीराम ने रत्न को देखा तो उन्होंने उसकी चमक और आकार के आधार पर उसकी असली कीमत का आकलन किया। वह जानते थे कि व्यापारी ने इस रत्न की कीमत बढ़ाकर राजा के सामने प्रस्तुत की थी। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, यह रत्न बहुत सुंदर है, लेकिन इसका असली मूल्य इससे कहीं कम है। आप इसे अपनी कीमत से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी ने तेनालीराम की बात को नजरअंदाज किया और कहा, आप क्या जानते हैं? यह रत्न बहुत ही दुर्लभ है और इसका मूल्य बहुत अधिक है। अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो इसे ज्यादा कीमत में ही खरीदिए। तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है व्यापारी बाबू, अगर आप मुझे विश्वास दिलाते हैं तो मैं इसे खरीदने को तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है तेनालीराम? तेनालीराम ने कहा, आप इसे मुझे उसी कीमत पर बेचेंगे जिस कीमत पर आपने इसे पहले खरीदा था। अगर यह रत्न सचमुच दुर्लभ है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। व्यापारी कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, तुम जानते हो तेनालीराम, मैं इसे अपनी खरीद कीमत से नहीं बेच सकता। यह सुनकर तेनालीराम हंसते हुए बोले, तो फिर इसका असली मूल्य क्या है यह तुम खुद जान सकते हो। अगर तुम ईमानदारी से मुझे बता सको तो मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूं। व्यापारी की परेशानी। व्यापारी अब असहज हो गया और उसने सोचा कि अगर वह सच बोलता है तो वह रत्न बेच नहीं पाएगा, लेकिन अगर वह झूठ बोलता है तो उसकी ईमानदारी की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। उसकी स्थिति कठिन हो गई। वह तेनालीराम से कुछ देर बात करने के बाद आखिरकार हार मानते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं तेनालीराम। मैंने इस रत्न को बहुत अधिक मूल्य में खरीदा था, लेकिन असल में इसका मूल्य उतना नहीं था जितना मैंने आपको बताया। तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम इसे अपनी खरीद से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हो। ईमानदारी से काम करो तो यह व्यापार भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। राजा की प्रतिक्रिया। राजा कृष्णदेव राय ने जब यह सुना तो उन्होंने तेनालीराम की ईमानदारी और चतुराई की सराहना की। राजा ने व्यापारी को कहा, व्यापारी, तुमने जो गलत किया उसके लिए तुम्हें पछताना चाहिए। लेकिन तेनालीराम की ईमानदारी ने तुम्हें दिखा दिया कि अगर तुम अपनी बातों और व्यापार में ईमानदार रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाया। अब तुम्हें ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। व्यापारी ने पछताते हुए कहा, महाराज, मैं अब अपनी गलती समझ गया हूं और मैं भविष्य में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। निष्कर्ष। तेनालीराम ने फिर राजा से कहा, महाराज, अगर हम हमेशा अपनी ईमानदारी बनाए रखें तो न केवल हमारे लिए अपितु दूसरों के लिए भी हम आदर्श बन सकते हैं। व्यापार में सफलता हमेशा सही मार्ग पर चलने से मिलती है, न कि किसी को धोखा देने से। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बातों से सहमति जताई और कहा, सही कहा राम, ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस तरह तेनालीराम ने न केवल व्यापारी को सही मार्ग दिखाया, बल्कि दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सिखाया कि ईमानदारी से ही जीवन में सबसे बड़ी सफलता मिलती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। किसी भी गलत रास्ते से मिलने वाली सफलता तात्कालिक होती है, लेकिन ईमानदारी और सत्य हमेशा सच्ची सफलता की कुंजी होते हैं।